Hello everyone, myself Khushari Kathiria. Today we will start a new subject is analysis and design of algorithm. In previous video I have already discussed what is analysis and design of algorithm. That means subject introduction. We have already discussed the subject discussion in our previous video. And so now today's lecture we will learn about the what is the algorithm. That means we start our first new chapters of ADA, analysis and design of algorithms. First chapter say like that, basics of algorithm and mathematics. So in this video we discuss many basic terms of algorithm, why we needs of algorithm, what is a algorithm, okay, how to write algorithm. This kind of the things we will discuss in our today's lecture. So before we move on to discussion in algorithm, we will discuss about the outline. Okay, so what is outline of our current chapter? First chapter contain we will discuss about the algorithm. That means we discuss algorithm terms. Okay, also we discuss a mathematical function. Okay, which kind of the mathematical function for that used in algorithm. Okay, so एल्गोरिदम सेट्स में कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन यूज होने वाले हैं वी विल डिस्कस. ऑल्सो वी डिस्कस फंक्शन एंड रिलेशन, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स. You have already learned matrix, vectors, function and relation in maths 3. Okay, if you are in a third semester, if you are in bachelor engineering, that means BE student, then you have already learned about the function, relation, vectors and matrix. But in today's chapter or in our chapter we will only discuss about briefly discussion about this kind of the terms like function, relation, vector, matrix and linear equation and inequalities. Okay, so this kind of the mathematical terms we will discuss in our current chapter. And this video contain what is an algorithm, needs of algorithm, characteristic and properties of algorithm. This kind of the terms we will use, we will discuss in our lectures. Okay, today's session. So let's start with first, what is algorithm? What is algorithm? So algorithm is term about the, it is a one kind of the method which can be used for the computer सॉल्यूशन. ओके, जो कोई भी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स है, जो कोई भी हमारा प्रॉब्लम है, कंप्यूटर बेसिक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? एल्गोरिदम जनरेट करना होगा. दैट मीन्स एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स रूल, उसको आपको क्या करना है? डिफाइन करना है. अगर आपको कोई केक है वो बेक करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ करोगे, वो आप देखोगे कौन कौन से है. मैदा है, शुगर है, चॉकलेट है, ठीक है, बटर है, या तो फिर एग्स है, वो सारे के आप क्या करोगे? लिस्ट आउट करेंगे. ओके, तो वो आपको क्या होगा? आपका इंस्ट्रक्शन, जो आपका रूल है, आपको केक बनाने के लिए जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उसके क्या आप किया? आपने किया, उसका लिस्ट बना लिया. ठीक है, बाद में आप क्या करोगे? केक बेक करने के लिए आपको पहले तो जो हमारा फ्लोर है, मैदा है, उसमें क्या करना है? बटर है, मिल्क है, और वो सारा आपको क्या करना है? मिक्स करना है. ओके, वो उसको मिक्स करने के बाद उसमें आपको डालना है वो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसको आपको डालना होता है. बाद में आपको फिर से उसको क्या करना है? उसका मतलब बैटर बनाना है. तो आपको वो क्या करेंगे? आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना. वो इंस्ट्रक्शन जो कोई भी आप यूट्यूब पे से देखोगे या तो फिर कोई बुक्स में से पढ़ के देखोगे, तो आप क्या करोगे? केक बेक करने के लिए जो कोई भी रूल्स है, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करोगे? वन बाय वन आपको उसको फॉलो करोगे. अगर आपको कंप्यूटर का कोई एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रक्शन, उसके लिए भी आपको उसके रूल्स, उसको क्या करना है? डिजाइन करना है. ओके, सो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक प्रॉब्लम. Okay, algorithm gives a solution for specific computer generated problem. Okay, this can be simple process such as multiplying two numbers or a complex operation such as playing a compressed video file. Okay,
एल्गोरिदम किसके लिए प्रोसेस होता है? प्रोसेस किसी भी के लिए होता है। मैंने बोला केक बेक करने के लिए, ओके। अगर आपको कंप्यूटर मतलब टेक्निकली अगर हम टर्म बात करें तो टेक्निकली टर्म में अगर हम सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम की बात करें, आपको अपने सी लैंग्वेज में कोई भी 2 नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, मोड, आपने कोई एक तो परफॉर्म किया होगा ना सी और सी प्लस प्लस में, ओके। सो ये सिंपल प्रोसेस होगी, ओके। और मे बी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक कंप्रेस अ वीडियो फाइल, कंप्रेस अ डेटा फाइल ट्रांसफर, ओके। दिस काइंड ऑफ द ऑपरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ओके। सम और वीडियो कंप्रेशन दोनों की कंपैरिजन करें तो सम वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, सम है, मॉडिफिकेशन है, वो सब क्या है, वो सिंपल टास्क है कंपेयर टू कंप्रेस वीडियो फाइल। तो दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस, ओके, इसकी प्रोसेस को हम फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, एल्गोरिदम जनरेट करना है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम आर ऑफन टू क्रिएट एज अ फंक्शन, ओके। इन अदर वर्ड्स, ओके, और अगर आपको ये नहीं समझ है, सिंपल डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल टू डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन करने के लिए हमें स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, रूल्स और इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो दूसरी डेफिनेशन भी है, एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल टू बी फॉलो इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन, ओके। कोई भी कैलकुलेशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोसेस है और जो सेट ऑफ रूल यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। देयरफॉर एल्गोरिथम रिफर टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हाउ अ वर्क इट विल बी एग्जीक्यूट अपॉन इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आउटपुट, आपका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड हो, उसके लिए जो कोई भी स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिथम बोल सकते हैं। दैट मीन्स आपको कोई केक बेक करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन आपको 110% उसकी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी ही होगी। अगर आपको कोई 2 नंबर का सम करना है तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक फंक्शन चाहेगा, सम इज इक्वल टू, ओके, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। सो ए प्लस बी में ए और बी की वैल्यू चाहिएगी, तो ए की वैल्यू आपको डिफाइन करनी होगी, बी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, बाद में उसको क्या करना होगा, कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप क्या करोगे, उसका सम करोगे, मतलब ए प्लस बी करोगे और उसकी एक मेमोरी में स्टोर करोगे और आप बाद में उसको डिस्प्ले कर दो, प्रिंट एफ कर दोगे, ओके। तो उस एल्गोरिदम, उस प्रोग्राम को जनरेट मतलब आउटपुट सम करने के लिए 5 + 5 = 10 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल डिफाइन करना होगा। दैट्स कॉल्ड अ एल्गोरिदम, ओके। यहाँ पर मैंने जो बोला था, जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो सम वाला प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, ओके, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ओके, उसके लिए हमें क्या करना, एल्गोरिदम क्रिएट फॉर द परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। सपोज कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि a + b = सम, दैट मीन्स 5 + 5 = सम, ओके। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो कोई भी टास्क लगेगा, जो कोई भी रूल्स लगेगा, उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। दैट मीन्स हमने एल्गोरिदम लिख दिया, बाद में हमने क्या किया, उसको कंप्यूटर में दे दिया। कंप्यूटर में यहाँ क्या होगा, इनपुट आएगा, दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू आएगी। वो क्या करेगा, एल्गोरिदम जो आया है a + b = सम होगा, उसका आउटपुट आएगा, ओके। या तो फिर आउटपुट है वो करेक्ट आएगा, या दैट मीन्स a + b = 10 आएगा, सम = 10। और आउटपुट क्या होगा, एरर। इफ अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो क्या आएगा, एरर आएगा। दैट मीन्स अगर हमने इनपुट दिया है a एंड b की वैल्यू, ओके, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, करेक्ट रिजल्ट, या तो फिर वो a और b का सम आएगा या तो फिर कोई एरर आएगी। बट वो कब आएगी, जब हमने उसके लिए एल्गोरिदम परफॉर्म किया होगा तब। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग टास्क हो, ओके, आपको सी में कोडिंग करना है, C++ में करना है, या तो फिर जावा में करना है, PHP में करना है, पाइथन में करना है, कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग करना है तो उसका बेसिक टर्म होगा, क्या होगा, एल्गोरिदम। दैट मीन्स उसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट, जैसे मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग में आपको बोला था कि फर्स्ट क्या आएगा, होम पेज, लॉगिन पेज आएगा, या तो फिर रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, बाद में क्या आएगा, होम पेज आएगा। होम पेज के बाद आप डायरेक्ट
हमने कभी ऐसा नहीं किया कि लॉगिन करते ही आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, उसका पहले स्टेप बाय स्टेप उसका फ्लो चार्ट आपको मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए, ओके। सो नाउ वी मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, ओके। एल्गोरिदम्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, देर आर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, we will discuss in this slide, okay। First characteristic is a input, second one is the output. What is the input and what is the output? Input is it should be externally supply zero or more quantities, okay। आप उसको जीरो क्वांटिटी मतलब आप इनपुट ना भी दो तो भी चलेगा, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से ले रहा होगा, या तो फिर मल्टीपल क्वालिटीज में आप ए बी सी कोई भी वेरिएबल की जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करना चाहो आप इनपुट दे सकते हो, ओके। आउटपुट इज अ रिजल्ट इन एटलीस्ट वन क्वांटिटी, ओके। अगर आप हम यहाँ पर सम की बात करें, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ओके। ए टू ई की आपने कोई वेरिएबल का सम करवाना है तो आपने उसकी क्या की, वैल्यू डिफाइन कर दी, ए की, बी की, सी, डी और ई, 5 कैरेक्टर की आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, सम इज इक्वल टू, दैट मीन्स कोई एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो दिस कॉल्ड द आउटपुट। डिफाइनेटनेस, ओके। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड एम्बिग्यूट, ओके। आपने जो कोई भी इंस्ट्रक्शन वो ए प्लस बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई उसको जो रन करवाने के लिए जो कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ओके। फाइनाइटनेस, ओके, दैट मीन्स जो कोई भी हमारा नंबर है, दैट मीन्स एल्गोरिदम शुड बी टर्मिनेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। फाइनाइटनेस दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपका एल्गोरिदम है, आपका प्रोग्राम है, वो कब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स कब वो हमारी फाइल है वो कब टर्मिनेट होने वाली है, एग्जीक्यूट कब उसका खत्म होने वाला है, ओके। दैट मीन्स फाइनाइटनेस। इफेक्टिवनेस, ओके। Effectiveness, that means every instruction should be fundamental to be carried out in a principle by a person using only one pen and paper, okay। Every instruction, okay, जो कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर हम नहीं लिखते हैं तो चलेगा, दैट्स नॉट इफेक्टिवनेस, ओके। जो कोई भी हमने एल्गोरिदम में लिखा है वो हमारा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव देता हो, ऐसी ही हमारी टर्म और ऐसा ही हमारा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। feasible that means it should be feasible enough to produce each instruction, okay। वो क्या होना चाहिए, feasible होना चाहिए। flexible, it must be flexible enough to carry out the desired changes with no effort, okay। अगर आपने sum में कोई फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स सपोज कि मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कोई सम है, कोई 2 डिजिट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सपोज के मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड मोड, ओके। 5 ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ओके। तो आपको क्या करना होगा, उसमें हर टाइम नंबर ऑफ 2 कैरेक्टर के तो पहले चाहिए, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए इंटू बी है, ए डिवाइड बाई बी है और ए मोड बी है, तो आपको 2 कैरेक्टर की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके एल्गोरिदम में 2 कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, उसकी लूप भी सेम हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको सेम सम के लिए नहीं, अब आपको सेम एल्गोरिदम मल्टीप्लिकेशन के यूज करना है तो वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दैट मीन्स सम की साइन पर आपको क्या करना है, मल्टीपल साइन रिप्लेस करना है। सो दिस कॉल्ड अ फ्लेक्सिबिलिटी। इफ efficient that means the term efficiency is measured in term of time and space required by algorithm implement, okay। ये वाला जो एफिशिएंस है ना, जब एल्गोरिदम की बात आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एफिशिएंसी एंड स्पेस एफिशिएंसी, वो दोनों की दोनों टर्म आपकी हर समय हर टाइम पर दिस काइंड ऑफ द
टर्म, ओके, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में आप हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कौन है। बट जो हमारी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है वो कितना एफिशिएंस है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, वो कितनी स्पेस, वो कितनी मेमोरी यूज करता है, ओके, उसके टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो वो क्या होना चाहिए, हमारा एल्गोरिदम है वो एफिशिएंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम करने के लिए हमें 10 सेकंड लगते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें 1 मिनट लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट algorithm must be language independent, which means it should be mainly focused on input and procedure required to derive the output instead of depending upon the language. Independent that means जो आप algorithm लिख रहे हो वो कोई एक that should not be used for any one language. Okay, if you are written any algorithm, ओके, इंग्लिश में अगर आपने लिखा है तो आप उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप उसको सी में, C++ में, जावा में, कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, एल्गोरिदम कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, वो मेन फोकस किसके ऊपर करता है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर। ओके, so this one is the characteristic of algorithm. Now we discuss the properties of algorithm. Okay, first property is non-ambiguity. Non-ambiguity that means जो हमारा स्टेप्स है एल्गोरिदम के, ईच स्टेप इज मस्ट बी नॉन एम्बिग्यूअस। ओके, दैट मीन्स कि ईच इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। ओके, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो हमने इंस्ट्रक्ट करने वाला है एल्गोरिदम में, जो हम 1 by 1 लाइन लिख रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज एफिशिएंट एंड प्रीशियस एंड क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड वन इज द रेंज ऑफ इनपुट। ओके, रेंज ऑफ इनपुट क्या होगा, स्पेसिफाई होगा। नॉर्मली हमारे जो कोई भी रेंज होती है, अगर आप बोल रहे हो कि 1 to 10 नंबर के नंबर है, उस 1 to 10 नंबर है उसका सम करो, तो आपने क्या किया, रेंज दे दी इनपुट की कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। ओके, 1 to 10 नंबर आपने रेंज दे दी। सपोज कि आपने बोला है कि 1 to 100, तो अगेन आपने क्या किया, रेंज दे दी, बट ये वाली रेंज आपके हाथ में नहीं है, तो वो क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। दैट मीन्स या पहले वो डिफाइन होनी चाहिए, बट वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो इनफाइनाइट में से कोई भी हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, रेंज हमेशा देनी है। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। ओके, आपको टास्क जो कोई भी है वो इनपुट ले लेना है और आउटपुट कर देना है, और उसको क्या कर देना है, बाद में उसको कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देना है। स्पीड दैट मीन्स मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी। ओके, कितना एफिशिएंस है टाइम और स्पेस, वो कितना फास्ट होता है। सम का एल्गोरिदम, अगर आपको सम करना है तो उसका एल्गोरिदम कोई, सपोज कि फैक्टोरियल का आप प्रोग्राम ले लो, सी में आपने फैक्टोरियल ऑलरेडी किया है, तो सॉरी, फैक्टोरियल का प्रोग्राम ले लो, तो कोई स्टूडेंट होगा वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स करेगा ना, तो उसको रन होने में देर लगेगी। और कोई स्टूडेंट है वो स्मार्ट वर्क करता है, फंक्शन यूज करता है फैक्टोरियल का, कि मेन बॉडी में से फंक्शन फैक्टोरियल का यूज कर दिया, उसने क्या किया, वो फंक्शन फैक्टोरियल का फंक्शन था, उसको कॉल किया और वो फंक्शन आकर मेन बॉडी में रिटर्न कर दिया। सो एल्गोरिदम में स्पीड भी मैटर करती है, और फाइनाइटनेस दैट मीन्स कि आपको जो कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए आपको क्या करना होगा, वो टर्मिनेट होना, दैट मीन्स आपको आउटपुट लाना है तो उसको टर्मिनेट होना क्या होगा, 110%। मतलब अगर आपको सम करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो वो एल्गोरिदम टर्मिनेट होना जरूरी है, तभी ना तभी आपको उसका क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, व्हाई वी नीड ऑफ एल्गोरिदम, we have already discussed property and characteristic of algorithm. Now we move to the needs of algorithm. algorithm की ज़रूरत क्यों पड़ी है, to understand the basic idea of problem. okay, basic idea problem क्या है वो understand करने के लिए, second one, find the approach to solve the problem. okay, find out the solution for the particular problem. improve the efficiency of existing techniques. okay, कोई, मैंने बोला था कि कोई टेक्निक होगी जो
10 मिनट्स लेता है आउटपुट में, अगर आप ऐसा एल्गोरिदम बिल्डअप करते हो जो 8 मिनट में होता है, दैट मीन्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी. अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग द एल्गोरिदम टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम विथ रिस्पेक्ट टू अदर टेक्निक. ओके, कंपेयर करने के लिए, परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए भी एल्गोरिदम का यूज होता है. ओके, इट इज अ बेस्ट मेथड टू डिस्क्रिप्शन विदाउट डिस्क्राइबिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल. अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, आपको सी नहीं पता है, C++ नहीं पता है, सिर्फ उसका टर्म्स पता है, आपको पता नहीं है कि कोडिंग कैसे करते हैं, जावा में कोडिंग कैसे करते हैं आपको नहीं पता है, बट फिर भी आपको एल्गोरिदम लिखना आता होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्क्रिप्शन विदाउट डिस्क्राइबिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल. आपको प्रॉब्लम क्या है वो डिस्क्राइब करना आता है एल्गोरिदम लिखते वक्त. Algorithm gives a clear description of requirements and goal of the problem to the designer. Okay, वो क्या करता है, क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है एल्गोरिदम, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम है वो कोड करने में, डिज़ाइन करने में हम क्या होता है, ईजी हो जाता है. द गुड डिज़ाइन कैन बी प्रोड्यूस अ गुड सॉल्यूशन. टू अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला था डिज़ाइन इंजीनियरिंग में अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि ये फंक्शन के बाद ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन के बाद ये फंक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, तो फ्लो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. दैट मीन्स एल्गोरिदम इट सेम वर्क लाइक दिस. To measure a behavior of methods in all case, best, worth and average case. We will discuss this kind of the cases in our second chapter. Okay, best case क्या है, worth case क्या है और average case क्या है, वो we will discuss in our next lectures. With the help of algorithm we can also identify the resources. Okay, resources cycle required by the algorithm. आप रिसोर्सेज उसके जो कोई भी यूज होने वाला है, उसकी मेमोरी है, उसका टाइम है, उसका इनपुट है, आउटपुट है, वो वेरिएबल की साइज है, वो सब आपको क्या करेंगे आप यूज, मतलब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाले हम यूज करने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम वी कन्वर्ट आर्ट इनटू साइंस. ओके, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग का जो प्रिंसिपल है, जो मोटो है, वो हम समझ सकते हैं. वी कैन मेजर और एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. Conquering input size without implementing and running, it will be reduce the cost of the design. अगर आपको कोई भी प्रोग्राम होगा उसको रन करने में कोई ना कोई तो कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, तो वो कॉस्ट रिड्यूस, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि उसमें इतना कॉस्ट लगता है, अगर हम ये वाला चेंज करेंगे तो ये वाली कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन, मतलब जो कोई भी डिज़ाइन की कॉस्ट है वो रिड्यूस करने में भी यूज होता है. ओके, सो दिस इज द नीड ऑफ एल्गोरिदम. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, ओके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.